Good morning, students, and welcome to the second lecture on numerical solutions of system of linear equations. In this lecture, we shall study about the iterative method to solve the system of linear equation, basically Gauss-Seidel iteration method. So let us recall what we have done in the previous lecture. We have considered a system of n linear equation in n unknowns. It means आपके पास system इस फॉर्म में given था a11 x1 plus a12 x2 plus a1 and xn equals to b1. This is our first equation. Similarly, second equation and nth equation. Right. Now, the system of equation can be represented as ax equals to b in matrix form, where a is the coefficient matrix. It means जो हमारे पास में unknown variables हैं, इनके जो multiply में जो coefficients है, this matrix is known as the coefficient matrix A. X is the column one vector of the unknown variables. X1, X2, Xn का column vector है. B is the right hand part of the system. Okay. So here A is n cross n square matrix. X is n cross one column one vector, and B is n cross one column one vector. So in the direct method, we have studied about the Gauss elimination method. In this method, the elementary elimination method, and it reduces the system of equations to an equivalent rectangular form, which can be solved by using back substitution. It means Gauss elimination में हमने क्या किया था? First we have reduced the system of equation into the upper triangular form and then apply back substitution method to solve the system of equations, right? And now let us discuss about the iteration method, right? So in iteration method, an initial approximation to the solution vector x0, right? जो हमारे पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको इटरेशन यदि मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम सम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए. सो दैट अप्रोक्सीमेशन इज डिनोटेड बाय x रेज पावर 0. ठीक है, या सफिक्स 0 का मतलब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन. इट इज अज्यूम एंड इम्प्रूव बाय इटरेशन. जो हमने सॉल्यूशन अज्यूम किया है हम उसको इटरेशन से इम्प्रूव करेंगे. The iteration method is of this form: x की power k plus 1 equals to h times x की power k plus c. Here x की power k, this denote the old value of the variables and this denote the new value of the variables. जो हमारे पास में unknown variables हैं, तो right hand part हमारे पास में x की power k denote the old values of the variables and this denotes the new values of the variables. And here h is known as the iteration matrix. For the Gauss-Seidel iteration method, its value we will define in the next slide. So this matrix H is known as the iteration matrix. So all the values or all the method depends on this matrix H. हमारे पास H पे सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे H की मैट्रिक्स की किस फॉर्म में है. Right. So now if it's suitable in now first question arise, what is the initial approximation? It means हम initial approximation की वैल्यू कैसे assume करें. For this one we can take this one xi equals to bi upon aii. It means हमारे पास में जो भी हमारे पास system of equations given है इसमें diagonal पे जो भी elements हमारे पास में आ रहे हैं entries, जैसे x1 यहाँ पे diagonal पे है, यहाँ पे x2 diagonal पे और यहाँ पे xn diagonal पे है. तो diagonal पे जो भी unknown variables आ रहे हैं उनकी coefficient से इसको divide करेंगे तो हमारे पास x1 की initial value क्या बन जाएगी? b1 upon a11. x2 की इनिशियल वैल्यू बन जाएगी हमारे पास b2 अपॉन a22. xn की इनिशियल वैल्यू बन जाएगी bn अपॉन ann. दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू फाइंड द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे डायगोनल पे अननोन वेरिएबल्स आ रहे हैं उनके मल्टीप्लाई में जो भी कोएफिशिएंट्स हैं उनसे हमारे पास राइट हैंड पार्ट में जो वैल्यूज आ रही हैं b1 b2 bn उसको डिवाइड करेंगे. सो x1 की इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बन जाएगा आपके पास में b1 अपॉन a11. x2 का इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा b2 अपॉन a22. सिमिलरली xn का इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा bn अपॉन ann. दिस इज आवर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, राइट? सो स्टार्टिंग विद द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0, इट मींस जो भी हमने यहाँ पे x की जो डायमेंशन है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के ऊपर. जितने आपके अननोन वेरिएबल होंगे उतनी ही आपके हमारे पास जो वेक्टर है इनिशियल वेक्टर उसकी डायमेंशन होगी. We generate the sequence of iterate. It means हमने यहाँ पे x0 की वैल्यू पुट करेंगे k equals to 0 के लिए, तो हमको x1 की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे. It means x0 हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन था, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट x1. अब यहाँ पे हम k equals to 1 के लिए x1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे x2 की वैल्यूज मिलेंगी.
सिमिलरली k इक्वल्स टू 2 के लिए x2 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको x3 मिलेगी. सो इन दिस वे वी आर गेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इटरेट्स. इट मींस हमने इनिशियली x0 से स्टार्ट किया, फिर हमको x1 मिल रहा है, x2 मिल रहा है, x3 मिल रहा है एंड xo. ये सारी जो वैल्यूज है वो किसकी तरफ अप्रोच करेंगी? एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरफ अप्रोच करेंगी. ठीक है. Now the iteration is stopped when the given error tolerance error is epsilon. It means as we know that कि कभी भी हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है कितने डेसिमल तक एक्यूरेट होना चाहिए. तो उसका मतलब क्या कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो आपने निकाली वैल्यूज, उनका डिफरेंस उस जो टॉलरेंस एरर है उससे कम होना चाहिए. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि 4 डेसिमल तक यदि आपके पास में सॉल्यूशन है तो हमको क्या करना है, 3 डेसिमल तक है तो क्या करना है. इट मीन बेसिकली दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज में यदि 3 डेसिमल की हम बात करें तो दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज 3 डेसिमल तक एक्यूरेट होनी चाहिए, 4 डेसिमल ऑनवर्ड उसमें एरर हो सकती है. तो सेम हियर. सो दिस गिव्स द टॉलरेंस एरर. इट मींस आपके पास में कितनी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी तक आपको सॉल्यूशन चाहिए. सो व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला xik + 1 - xik. इट मींस xi के हमारे पास में जो वैल्यूज हैं वो old value and this is our new values. Old और new का जो difference है that must be less than equals to some epsilon which is given tolerance number. So the convergency properties of the iteration methods depend on the iteration matrix H. It means हमारे पास जो H matrix है यहाँ पे. So this method depends on this matrix H कि ये method converge करेगा या diverge करेगा. It's all depends on this matrix H and it is known as the iteration matrix. So first condition is that a necessary and sufficient condition for the convergency is rho of H is less than 1. Here rho of H denotes the spectral radius of H. आप लोगों को नहीं यदि पता है तो फर्स्ट ईयर में आइगन वैल्यूज आपने निकाली होगी मैट्रिक्स की. यस नो? यस सर. कैसे निकालते थे बेटा, कुछ आइडिया है आपको? कोई मैट्रिक्स आपके पास में गिवन थी, उसके आइगन वैल्यूज के लिए आप क्या ट्राई करते थे? सर इनवर्स निकालते थे शायद. शायद नहीं होता बेटा. गौरव सो हमारे पास में सपोज ए कोई मैट्रिक्स थी तो आप उसके लिए क्या करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 निकालते थे. कुछ याद आया? ए मैट्रिक्स आपके पास में गिवन थी तो उसके आइगन वैल्यूज के लिए आप क्या करते थे? डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करते थे आप. वहां से हम लैम्डा की वैल्यूज निकालते थे. दैट वैल्यूज ऑफ लैम्डा नोन एज द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए. और डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 इज नोन एज द characteristic equation of the matrix A. Okay, so same here. Now a necessary and sufficient condition for the convergency of this iteration methods depend on spectral radius. Spectral radius की value यदि 1 है. Now what is the meaning of spectral radius? It means largest magnitude जो भी होगा आइगन वैल्यूज का, that denote the spectral radius of the matrix. Suppose आपके पास में 3 आइगन वैल्यूज गिवन है 0, 1 एंड -2. तो इनमें से लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाली आइगन वैल्यू कौन सी है बेटा? 1. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड. सर -2. -2. राइट. सो मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 हो जाएगा आपके पास में. फॉरगेट अबाउट द साइन. साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव से मैटर नहीं करता. मैग्नीट्यूड यदि हम बात करते हैं लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाली आइगन वैल्यू कौन सी होगी आपके पास में? 2 हो जाएगी, है ना. सो इट मींस आपके पास में जो भी आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स H बन रही है, इटरेशन मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यूज हम निकालेंगे. यदि आइगन वैल्यूज में जो सबसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है मैग्नीट्यूड के अंदर, उसकी वैल्यू यदि लेस देन 1 है, देन योर मेथड्स विल डेफिनेटली कन्वर्ज टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. ठीक है. सो जब भी हमारे पास में इटरेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो हम इसमें H मैट्रिक्स निकालेंगे और उसकी आइगन वैल्यूज निकाल के चेक करेंगे कि हमारा मेथड कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा. Convergency condition is not that spectral radius of H is less than 1. Here spectral radius means largest magnitude eigenvalue. ठीक है. So इसको नोट कर लीजिए आप एक बार कि how do we find the convergency और how do we check the convergency of the given iteration method. स्पेक्ट्रल रेडियस आप निकालेंगे, उसकी वैल्यू आपकी 1 से कम होनी चाहिए.
Now, second condition is that if the coefficient matrix A of the given system is diagonally dominant, यहाँ पे diagonally dominant का मतलब ये है, for example this one, ये आपके पास में है, यहाँ पे diagonal पे एंट्रीज आपके पास में क्या है, this is our A11, this is A22 and this is ANN. A मैट्रिक्स की diagonal एंट्रीज आपकी यही है, yes or no? Yes sir. अब आपके पास में आपकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, ये डायगोनल डोमिनेंट का मतलब क्या है कि जो डायगोनल पे एंट्री है इसकी वैल्यू, इसकी रिमेनिंग जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके समीशन के आइदर बराबर हो या उससे ज्यादा हो. इट मींस A11 आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू A12 प्लस A13 प्लस A1n. तुम्हारे जो ये मैट्रिक्स बन जाएगी डायगोनली डोमिनेंट. सिमिलरली फॉर द सेकंड डायगोनल एलिमेंट A22 की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू A21 plus A23 plus A2n and so on. ठीक है. Similarly, this diagonal element ANN must be greater than and equals to AN1, AN2 and so on. ठीक है. तो डायगोनल पे जो भी आपकी वैल्यूज आ रही है कोएफिशिएंट्स की, उनकी वैल्यूज का जो है वो रिमेनिंग जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उस रो के अंदर उनसे आइदर बराबर होनी चाहिए या उनसे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपकी मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स बनेगी. Clear? So this condition is written in this mathematics form. If the coefficient matrix A of the given system is diagonally dominant, that is mod of AII is always greater than and equals to summation J equals to 1 to जो भी आपके पास में एंट्रीज है रो के अंदर and J not equals to I. It means diagonal के अलावा जो भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है mod of AIJ. It means absolute values की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. यदि नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव मान के उनका हम समीशन कर देंगे. तो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनका जो समीशन है वो हमेशा डायगोनल एंट्रीज के समीशन से कम होगा या उसके बराबर होगा. फॉर ऑल I, देन द कंडीशन इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई एंड कन्वर्जेंस इज गारंटी. पहला कंडीशन क्या है कि यदि आप स्पेक्ट्रल रेडियस निकालते हैं इटरेशन मैट्रिक्स की तो वो 1 से कम होनी चाहिए, या ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी यदि हमारा सिस्टम क्या है, डायगोनली डोमिनेंट है. It means mod of AII is greater than equals to summation mod of AIJ for J not equals to I. क्लियर बेटा? इसमें सेकंड कंडीशन में कोई डाउट किसी को? एक यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी नोट कर लीजिए. फर्स्ट आप स्पेक्ट्रल रेडियस से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका मेथड कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा. सेकंड आप इससे भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A है वो डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है. तो सेकंड पॉइंट भी नोट कर लीजिए. The matrix A must be diagonally dominant for the convergency of the iteration method. Now third condition, यदि हमारा मेथड कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी कन्वर्जेंसी रेट क्या है, उसके निकालने का फॉर्मूला है if the iteration method converges then nu equals to minus log base 10 of spectral radius of H is called the rate of convergency or the order of the method. ठीक है. So note down this formula also. This denotes the rate of convergency or order of the method. It means हमारे पास में spectral radius जो भी हम H मैट्रिक्स की निकालेंगे उसका हम log base 10 की वैल्यूज निकाल के चेक करेंगे with negative times. तो वो वैल्यू जो भी आएगी that denote the order of the method और rate of convergency of the method. So ये तीनों फॉर्म कंडीशंस नोट कर लीजिए एक बार, because we use these in the next examples. कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को कुछ? Alright. Now come to the Gauss-Seidel iteration method. We assume that the diagonal elements AII of the matrix A, जो भी हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, are non-zero. We write the system of equation 1 as. It means हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 है, it means this equation. इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है उसको लेफ्ट में रखेंगे, रिमेनिंग को हम राइट में ले जाएंगे. तो बताइए राइट में क्या बन जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट आपके पास में क्या A11 X1 है, तो रिमेनिंग एंट्रीज आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगी आपकी राइट हैंड पार्ट. A11 X1 के अलावा सारी एंट्रीज को आप राइट में लेके जाइए तो क्या बनेगी आपका राइट हैंड पार्ट. सर B1 minus A12 X2 जो भी लास्ट की एंट्रीज है ना ये हो जाएगी.
सिमिलरली सेकंड डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, a22x2 है, इसको आपको लेफ्ट में रखना है, रिमेनिंग को आप राइट में लेके जाएंगे तो राइट हैंड पार्ट क्या बनेगा आपका, b2 minus a22x2। a22x2 तो लेफ्ट में रहेगा ना, अभी तो कह रहा हूँ 40 रुपये लगा a21 minus x1। ठीक है। रिमेनिंग एंट्रीज आप सिमिलरली लास्ट इक्वेशन के लिए डायगोनल एलिमेंट आपके पास में है, रिमेनिंग जो नॉन डायगोनल एंट्रीज आप उसको राइट में लेके जाएंगे तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, है ना। a11x1 लेफ्ट में है, राइट हैंड पार्ट बन जाएगा b1 माइनस a12x2 प्लस एंड सो ऑन, a22x2 लेफ्ट में है, b2 माइनस दिस, a33x3 b3 माइनस दिस, लास्ट इक्वेशन आपके पास में ये है। सो जो भी आपके पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे, डायगोनल को लेफ्ट में रखेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आप राइट में लेके चले जाएंगे। नाउ दिस इटरेशन मेथड कैन बी डिफाइन एज x1k plus 1 1। नाउ जो भी हमारे पास में यहाँ पे है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो सारी एंट्रीज को हम पावर k+1 रख देंगे, यहाँ पे k+1 डिनोट दी इटरेशन स्कीम, है ना, तो यहाँ पे k+1 इटरेशन, ये k+1 इटरेशन, तो लेफ्ट हैंड पार्ट में जो भी वैल्यू जा रही है उसको k+1 देंगे और राइट हैंड पार्ट में अभी हमारे पास में जब x1 की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग सम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पे x2 की सारी x2 x3 xn जो भी हम अज्यूम करेंगे वो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे हम x1 की हम बात करें तो हमारे पास जब हम x2 निकालने जाएंगे तो हमारे पास में x1 की दो वैल्यूज प्रेजेंट होगी, एक जो हमने अज्यूम की है, दूसरी जो हमने इस इक्वेशन का यूज करते हुए निकाली है। तो हम जो अज्यूम किए उसके बजाय हमारी जो न्यू वैल्यू हमने निकाली है x1k+1 हम यहाँ पे यूज करेंगे व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x2k+1। सिमिलरली जब हम x3 निकालने जाएंगे तो हमारे पास में x1 और x2 की दो वैल्यूज पॉसिबल प्रेजेंट होगी हमारे पास में, एक तो हमारे पास जो हमने अज्यूम की है, दूसरी हमने जो यहाँ पे दोनों इक्वेशन से निकाली है, ठीक है। जो हमने दोनों इक्वेशन से निकाली है वो वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इन दिस वे जो लास्ट वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें सारी के सारी हमारे पास x1 xn-1 न्यू वैल्यू प्रेजेंट होगी, तो हम यहाँ पे सबकी सब न्यू वैल्यूज यूज करेंगे, ठीक है। x1 निकालेंगे तो वहां पे जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यूज किए हैं वो वैल्यूज पुट करेंगे और k = 0 की हम बात कर रहे हैं। x2 निकालेंगे तो हमारे पास में x1 की दो वैल्यूज प्रेजेंट होगी, एक वैल्यू जो हमने अज्यूम की है x1 के, दूसरी हमारे पास हम जो x1k+1 निकाली है, तो हम यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू यूज करेंगे। सिमिलरली जब हम x3 निकालेंगे तो x1 x2 की अपडेटेड वैल्यू यूज करेंगे, xn निकालेंगे तो हमारे पास में x1 up to xn-1 की अपडेटेड वैल्यूज हमको यूज करनी है। सो दिस इज अवर गॉस सीडल इटरेशन मेथड, ठीक है। तो जब भी हम जैसे हमारे पास में तीन वेरिएबल है x, y और z, तो हम जब y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में x की अपडेटेड वैल्यू जो भी आएगी उसका हमको यूज करना है, और अपडेटेड वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, इस इक्वेशन से मिलेगी, ठीक है। जब हम z निकालने जाएंगे तो हमारे पास में x और y की अपडेटेड वैल्यू जो भी होंगी वो यहाँ से हमको मिलेंगी, उन वैल्यूज का हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो जब भी आप नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उससे जो प्रीवियस वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमको यूज करनी है to find the updated value of the unknown variables. Now this system of equation can be written in matrix form also. We can also write the ax equals to b आपके पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, हम इसको इस फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं l plus d plus u times x बराबर b, where l stand for the lower triangular matrix, strictly lower triangular, it means डायगोनल के नीचे वाले एंट्रीज हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है डायगोनल एंट्रीज है, और यू हमारे पास में क्या स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट मींस हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसको हमने तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक तो डायगोनल एंट्रीज है, दूसरी हमारे पास में स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और थर्ड हमारे पास में स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इन तीनों का आप यदि समीशन करेंगे तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स हमको मिलेगी। सो हमने ए मैट्रिक्स को तीन पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पे l plus d plus u times x बराबर b। नाउ this can be written as l plus d over x बराबर b minus ux, ठीक है। Now if we take the inverse of this l plus d, then we get x equals to minus d plus l inverse ux थे हमारे पास में ये है, इसमें हमने d plus l का इनवर्स लिया तो हमारे पास में बन जाएगा x की पावर k plus 1 equals to minus of d plus l inverse u of x की पावर k plus d plus l inverse b, where k equals to 0, 1, 2 and so on. Now if we compare this Gauss-Seidel iteration method with the standard iteration method,
ये हमारे पास में स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया था एक्स की पावर k प्लस 1 इक्वल टू h टाइम एक्स की पावर k प्लस c, वेयर h डिनोट द इटरेशन मैट्रिक्स। तो हमारे बताइए हमारे पास इसमें गॉस के लिए हमारे पास h की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से h की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, x के मल्टीप्लाई में जो भी मैट्रिक्स है दैट इज डिनोट द h। तो हमारे पास में यहाँ पे h क्या बनेगा, h इक्वल टू माइनस ऑफ d प्लस l इनवर्स u। ठीक है, दिस इज अवर इटरेशन मैट्रिक्स फॉर द गिवन गॉस सीडल मेथड। एंड जो हमारे पास में c जो मैट्रिक्स बनेगी दैट इज इक्वल टू d प्लस l इनवर्स d, इट मींस ये वाला पोर्शन। ठीक है, सो नोट डाउन दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला डिनोट द गॉस सीडल इटरेशन स्कीम। x की पावर k प्लस 1 इक्वल टू माइनस d प्लस L inverse u of xk plus d plus L inverse d k equals to 0, 1, 2 and so on. So note down this formula. नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा? यस सर। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपके पास में जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है उसमें डायगोनल पे जो एंट्रीज उनको लेफ्ट में रखना है, रिमेनिंग को आप राइट में लेके चले जाएंगे और लेफ्ट वाली एंट्रीज को हम पावर k प्लस 1 दे देंगे, बिकॉज ये हमारे पास में क्या है अपडेटेड वैल्यूज होंगी। राइट हैंड पार्ट में सबको k देंगे, बट जो हमारे पास में अपडेटेड वैल्यू प्रेजेंट है उसको हम k प्लस 1 देंगे। ठीक है, यहाँ पे k देने का मतलब क्या है, ओल्ड वैल्यूज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस राइट हैंड पार्ट में सारी की सारी ओल्ड वैल्यूज देंगे, बट जहाँ पे न्यू वैल्यू अवेलेबल है हम वहाँ पे न्यू वैल्यू यूज करेंगे। जैसे कि हम x2 निकालने रहे तो हमारे पास में x1 की दो पॉसिबिलिटीज है, x1 की पावर k और x1 की पावर k प्लस 1, तो हम यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू यूज कर रहे हैं। x3 जब निकालने जा रहे हैं तो हमारे पास में x1 और x2 की दो वैल्यूज पॉसिबल है, x1 की पावर k और x2 की पावर k, बट हम यहाँ पे ये वाली अपडेटेड वैल्यू यूज करेंगे। सिमिलरली फॉर xn। ठीक है, तो हमको अपडेटेड वैल्यू यूज करेंगे तो हमारे पास में इटरेशन स्कीम ये बन जाएगी। Now, if the matrix A is strictly diagonal dominant, it means ये वाली condition है, then Gauss-Seidel iteration method for solving the system of equations Ax equals to b converts for any initial approximate vector x raised power 0. We have already discussed in the previous slide this one. So let us see the application of this scheme. Set up the Gauss-Seidel iteration scheme in matrix form for solving the system of equations. आपके पास में system of equations की बने, this is our A matrix, this is our x column vector, and this is our B column vector. ठीक है, so that the method is divergent. First equation is this one. Second one is extend the first and third equations and set up the Gauss-Seidel iteration scheme for solving the new system, so that the method is convergent and find the rate of convergency of the method. First equation हमारे पास में क्या है, method is divergent. अब मेथड की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए क्या चाहिए हमको, मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था उस टाइम पे स्टार्टिंग में कुछ क्या कंडीशंस थी, कुछ आइडिया है आप लोगों को? अभी नोट किया होगा आप लोगों ने, दो कंडीशंस थी आपके पास में। सर डायगोनल्स की वैल्यू बड़ी और बराबर होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट रो के अंदर आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई दिख रही है? नो सर। यहाँ पे -2, इसको +2 मान लीजिए आप, है ना। इस 2 की वैल्यू इनसे बड़ी तो नहीं है समीशन से, इट मींस यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट थर्ड इक्वेशन के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। सो आपको डायरेक्टली देख के लग रहा है कि ये मेथड कन्वर्ज नहीं करेगा, है ना। यस सर। तो हम पहले मैट्रिक्स से हमको पता चला, तो हम इसके लिए हम दूसरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम जो स्पेक्ट्रल रेडियस है वो निकालें। किसकी स्पेक्ट्रल रेडियस निकालें हमको? इटरेशन जो मैट्रिक्स हमारे पास में H है उसकी हम आइगन वैल्यूज निकाल के चेक करें कि आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या होनी चाहिए, <1 होनी चाहिए। यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है इट मींस योर मेथड विल कन्वर्ज, यदि नहीं होती है इन दैट केस योर मेथड विल डाइवर्ज। ठीक है, सो अब इसकी स्पेक्ट्रल रेडियस निकालनी है फॉर द गॉस-सीडल इटरेशन मेथड। तो आपके पास में ये फॉर्मूला प्रेजेंट है। तो H निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें पहले D मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, L फाइंड आउट करेंगे और U मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। सो बताइए इस मैट्रिक्स के लिए D की वैल्यू क्या बनेगी?
डी मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली। इस मैट्रिक्स को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास में डी मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल की एंट्रीज रखेंगे, रिमेनिंग को हम 0 बना देंगे। सेकेंड मैट्रिक्स, इट मींस डायगोनल और डायगोनल की ऊपर वाली सारी एंट्रीज हमको 0 बना देंगे, और नॉन डायगोनल जो है ये वाली एंट्रीज हमको एज सच रखेंगे। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल का मतलब डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज को हम 0 बना देंगे और रिमेनिंग एंट्रीज को एज सच रखेंगे। तो बताइए डी की वैल्यूज क्या बनेगी? डी की मैट्रिक्स में बनेगी -2 पे डायगोनल, -8 पे डायगोनल, -2 पे डायगोनल, ठीक है। एल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास में क्या बनेगा? 4 4 -1 प्रेजेंट रहेंगे, रिमेनिंग सारी एंट्रीज 0 बन जाएगी। यू के अंदर क्या रहेगा हमारे पास में? 1 5 1 प्रेजेंट रहेंगे और रिमेनिंग एंट्रीज हम 0 बना देंगे। अब इन तीनों मैट्रिक्स का यदि आप समीशन करेंगे तो आपको ए मैट्रिक्स मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस सर। ठीक है। सो हमारे पास में एच की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -d + l इनवर्स u, एंड सी जो हमारे पास में है उसकी वैल्यू हो जाएगी d + l इनवर्स d। h विद नेगेटिव साइन है। तो बताइए h की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से आप d निकालिए, l की वैल्यू निकालिए और u की वैल्यू निकालिए, और ये वाला फॉर्मूला जो हमारे पास में अवेलेबल है उसमें इसकी पहले h की वैल्यू चेक कीजिए। h का मतलब माइनस टाइम्स ऑफ d + l इनवर्स, इट मीन जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है d + l, उसका हमको इनवर्स निकालना और उसको हमको u मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो ट्राई कीजिए आप लोग, h की वैल्यू क्या मिलती है, h मैट्रिक्स की वैल्यूज क्या, एंट्रीज क्या मिलेंगी आपको? हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ये है। आप ट्राई कर लेना इसकी ना। तो हमारे पास में एच मैट्रिक्स जो मिलेगी -d + l इनवर्स u। तो d + l का मतलब -2 4 4, इट मींस हमारे पास हम क्या करेंगे, इसमें ये वाली एंट्रीज हम d + l के अंदर ये वाली एंट्रीज हम 0 बना देंगे। 1 5 1 को 0 बना दीजिए आप। तो 1 5 1 को आपने 0 बना दिया, तो ये दिस इज अवर d + l मैट्रिक्स। अब हमको इसका इनवर्स निकालना और उसको हमको u मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। u का मतलब 1 5 1 को नॉन जीरो एज सच रखना है और रिमेनिंग को हम 0 बना देंगे। तो u मैट्रिक्स आपके पास में ये बनेगी। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू वी गेट 1/32 0 0 0 16 8 28 80 44 and 138। यू कैन वेरीफाई, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि -d + l इनवर्स u इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स विद मल्टीप्लाई बाई 1/32। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? इटरेशन मैट्रिक्स बन जाएगी। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे? वी फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ h। फॉर दिस वन वी सॉल्व दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ h - λi। इट मींस डायगोनल पे हम क्या करेंगे? -λ कर देंगे यहाँ पे, है ना। सो दिस इज -λ, दिस इज 1/4 - λ, बिकॉज आप 32 से इसको डिवाइड भी कर देंगे अंदर, एंड दिस इज 69/16 - λ। If we simplify this determinant, then we get lambda times 16 lambda square minus 73 lambda minus 2 equals to 0. This is our cubic polynomial. यदि आप इसकी वैल्यूज निकालते तो हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज हमको मिलेंगी। सो एक वैल्यू तो आपको इजीली दिख रही है कि लैम्डा की वैल्यू एक तो क्या बनेगी? 0 बनेगी। रिमेनिंग जो लैम्डा की वैल्यूज है हम इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। दैट आर गिवन बाय 73 plus minus square root of 54 57 divided by 32. It means we have 3 eigenvalues, 0 minus 0.003 and 4.59. So बताइए इसमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है? लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है इसमें तीनों में से? 4.59। So therefore spectral radius की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4.59, which is greater than 1। बट हमारे पास कन्वर्जेंसी की कंडीशन क्या है? स्पेक्ट्रल रेडियस मस्ट बी
less than 1, but here spectral radius 4.59 is greater than 1, therefore this method will diverge. Yes or no? Yes sir. Because गिवन सिस्टम जो ए मैट्रिक्स हमारे पास में वो क्या नहीं है, डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। यदि हमारी मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट होती तो हमारा मेथड क्या करता, कन्वर्ज करता, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर if the matrix A is strictly diagonally dominant, it means there is no equal condition, strictly diagonally dominant है यहाँ पे ना, तो आपका जो मेथड है वो कन्वर्ज करेगा। बट हमारी मैट्रिक्स वो क्या है, strictly diagonally dominant नहीं है, therefore this method will diverge। और इसको हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया by finding the spectral radius which is greater than equals to 1। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? No, sir. All right. Now next, move to the second part. If we exchange the first and third equation, अब यदि आप फर्स्ट और थर्ड को एक्सचेंज कर देते हैं, इट मींस फर्स्ट रो को आप थर्ड बना देते हैं और थर्ड को आप फर्स्ट बना देते हैं, तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स ए बनेगी उसकी फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को आपने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। सो फर्स्ट रो आपके पास में क्या बन जाएगी, 4 -1 -2। सेकेंड रो ए सच रहेगी और थर्ड रो बन जाएगी आपके पास में -2 1 एंड 5। यस और नो? यस सर। अब हमारे पास में ये वाली फर्स्ट रो बन गई है। अब इसमें आप डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है, 4 है, विच इज ग्रेटर देन टू द रिमेनिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट के समीशन के से ज्यादा है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, सो ये समीशन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, विच इज लेस देन 4, सो कंडीशन इज ट्रू। सिमिलरली फॉर द सेकंड डायगोनल एलिमेंट -8 के लिए 4 और 5 के समीशन से ज्यादा है। सिमिलरली फॉर द थर्ड डायगोनल एलिमेंट 5 की वैल्यू हमारे पास 2 और 1 से ज्यादा है। So now you can see that your coefficient matrix A is strictly diagonally dominant. Yes or no? If your matrix A is strictly diagonally dominant, then it means your Gauss-Seidel iteration method will converge to the exact solution. ठीक है, तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स है हमने इसको A मैट्रिक्स हमारे पास में ये बन जाएगी 4 -1 -2 after interchanging first and third equation, 4 -8 1 -2 1 5. You can see here the diagonal element are strictly greater than to the non-diagonal elements summation। 4 की वैल्यू 1 और 2 से ज्यादा है, 8 की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 5 की वैल्यू 2 और 1 से ज्यादा है। Now again we find the iteration matrix H for this method, which is equals to minus of D plus L inverse U। D plus L का मतलब डायगोनल के ऊपर जो भी एंट्रीज है उनको हम 0 मान लेंगे यहाँ पे। So this is our D plus L matrix। इसका हमको इनवर्स निकालना है। U का मतलब अपर जो डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज उनको ऐसा रखना है, रिमेनिंग को हम 0 बना देंगे। सो दिस इज अवर U मैट्रिक्स। इफ यू सिंप्लीफाई दिस प्रोडक्ट देन वी गेट 1/60 टाइम्स दिस मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स H। उसके लिए हमको क्या करना है, वी नीड टू सॉल्व दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटरमिनेंट ऑफ H माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल पे माइनस लैम्डा कर देंगे और उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालेंगे। सो माइनस लैम्डा, इफ वी सिंप्लीफाई दिस डिटरमिनेंट देन वी गेट लैम्डा टाइम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा अपॉन 4 माइनस 1/80। सो फ्रॉम हियर वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 720 अपॉन 160। सो देयरफॉर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 0 minus 0.043 0.293। So what is the largest eigenvalue here? 0.043। ढंग से देखो बेटा, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं, 0.293 सर। 0.293। सो दिस इज अवर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू व्हिच इज लेस देन 1। यस और नो? 0.293 is less than 1, therefore we can say that our method will converge because 0.293 is less than 1 and 0.293 our spectral radius for the given matrix H which is less than 1, therefore this method will converge। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। नाउ नेक्स्ट में यदि हमारा मेथड कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी कन्वर्जेंसी की रेट क्या होगी, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, न्यू इक्वल्स टू माइनस log base 10 ऑफ स्पेकुलर रेडियस ऑफ H।
स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ एच हमारे पास कितनी है 0.293। यहाँ पे इसका लॉग बेस 10 आप 0.293 की वैल्यू निकालते हैं और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 0.5331। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मेथड और रेट ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ दिस गॉस सीडल इटरेशन मेथड। क्लियर? तो जब भी आपके पास में गॉस सीडल इटरेशन मेथड से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ प्रॉब्लम आपके पास में आए कि चेक वेदर योर मेथड विल कन्वर्ज और डाइवर्ज, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी जो मैट्रिक्स ए गिवन है कोएफिशिएंट्स वाली, वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। यदि डायगोनली डोमिनेंट है तो या उसके बाद में हम चेक करेंगे कि उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंसी क्या है। इट मींस आपका मेथड तो कन्वर्ज करेगा ये, उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंसी के लिए हमको क्या निकालना होगा? स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ एच। एच हमारे पास में जो इटरेशन मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज हम निकालेंगे, और जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है आपकी वो लेस देन आपको 1 मिलेगी इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपका मेथड कन्वर्ज करेगा और कन्वर्जेंसी रेट आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? Now next example, perform 3 iterations of the Gauss-Seidel iteration method for solving the system of equation. Previous example में हमने कन्वर्जेंसी चेक की है, अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है? इस सिस्टम को सॉल्व करना है। So first of all, check whether your matrix A is diagonally dominant or not. Yes sir. डायगोनल डोमिनेंट है बिकॉज यहाँ पे 4 की वैल्यू इन दोनों के समीशन से ज्यादा है, 5 की वैल्यू नॉन डायगोनल के एलिमेंट के समीशन से ज्यादा है, और 10 की वैल्यू 5 और 4 के समीशन से ज्यादा है। इट मींस योर मैट्रिक्स A is strictly diagonally dominant, therefore this method will always converge to the exact solution. अब इसके लिए आपको क्या करना है? अब गॉस सीडल मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द इटरेशन स्कीम। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? इसके लिए डायगोनल पे जो एंट्रीज उनको लेफ्ट में रखेंगे और रिमेनिंग को आप राइट में लेके चले जाएंगे। तो ये हमारे पास है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी फर्स्ट रो से? बताइए। यदि हमारे पास में जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इसको हम यदि सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लेके दें, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी इस सिस्टम से? फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, तो मैट्रिक्स से आप सिस्टम भी बना सकते हैं वापस। तो इस फर्स्ट रो से आपको कौन सी इक्वेशन मिलेगी? फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है विच इज द कॉलम करस्पॉन्डिंग टू द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, ये सारे के सारे क्या है? x के कोएफिशिएंट्स हैं, ये y के कोएफिशिएंट्स और ये z के कोएफिशिएंट्स हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x + 0y + 2z = 6। सेकेंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी 0x + 5y + 2z = -3। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी 5x + 4y + 10z = 11। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन रही है 4x + 2z = 6, और डायगोनल पे हमारे पास क्या है? 4x है, तो हम डायगोनल को लेफ्ट में रखेंगे, रिमेनिंग को आप राइट में ले जाएंगे। सो x बराबर बन जाएगा 1/4 × 6 - 2z। ये सुनो, यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1/4 × 6 - 2z होगी या नहीं होगी? यस सर। और सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे? डायगोनल पे हमारे पास क्या रहेगा? y रहेगा, सो y को हम लेफ्ट में रखेंगे, रिमेनिंग को हम राइट में ले जाएंगे। तो इस सेकंड इक्वेशन से हमारे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/5 × -3 - 2z। ठीक है, यस सर। एंड थर्ड रो से हमारे पास में क्या मिलेगा? z डायगोनल पे है, तो z लेफ्ट में रखेंगे, रिमेनिंग राइट में चले जाएंगे। तो z = हो जाएगा 1/10 × 11 - 5x + 4y। ये हो गया। अब हम इसको इटरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो राइट हैंड पार्ट साइड में पावर क्या रखेंगे? k रखेंगे, और लेफ्ट में k + 1। इट मींस लेफ्ट हैंड पार्ट डिनोट दी अपडेटेड वैल्यू ऑफ x, y, z। तो यहाँ पे जब हम x की पावर x निकालने जाएंगे हमारे पास में z की ओल्ड वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट होगी, y निकालने के जाएंगे हमारे पास में x की और x की न्यू वैल्यू प्रेजेंट होगी, बट यहाँ हमारे पास x की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो z की हम ओल्ड वैल्यू यूज करेंगे। बट जब हम z निकालने जा रहे हैं तो हमारे पास में x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक तो हमने जो अज्यूम करेंगे और जो हमारे पास हम यहाँ से निकालेंगे। तो हम यहाँ पे कौन सी यूज करेंगे? जो हमने यहाँ पे अपडेटेड वैल्यूज निकाली है, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? पावर k + 1 k + 1। ठीक है, सो दिस इज आवर इटरेशन स्कीम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? k = 0 के लिए पुट करेंगे, तो हमारे पास
x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 1 की वैल्यूज मिलेगी। k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2 वाली वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पे पावर का मतलब है अपडेटेड वैल्यूज से मतलब है ना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइज व्हाट आर दी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द सॉल्यूशन। उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को? k इक्वल टू 0 के लिए हमको क्या चाहिए? z की पावर 0 चाहिए, y की पावर 0 भी चाहिए और x की पावर 0 भी चाहिए। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए था। उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में ही? याद है या भूल गए? ये वाला फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया? दिस वन, xi इक्वल टू bi अपॉन aii। इट मीन्स राइट हैंड पार्ट में जो भी है उसको डायगोनल का जो उससे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास हमने जो सिस्टम लिखा है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है फर्स्ट जो कांस्टेंट टर्म है दैट डिनोट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो हम यहाँ पे x की पावर 0 की वैल्यू क्या रखेंगे? 6/4, बिकॉज 6 हमारे पास क्या है? b1 है, 4 हमारे पास क्या है? a11 है। यहाँ पे हम -3 क्या हमारे पास में? b2 है, और 5 हमारे पास क्या है? a22 है। यहाँ पे 11 क्या है? b3 है, और 10 क्या है? a33 है। ठीक है, सो हमारे पास में x की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 6/4। 6/4 की वैल्यू कितनी होगी बताइए बेटा? थ्री अपॉन टू, इट मीन 1.5 होगी या नहीं होगी? यस सर। और -3/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.6। यस सर। 11/10 की वैल्यू? 1.1। 1.1। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नहीं है अभी इसमें। सर ही चले गए क्या? हाँ। चलो फिर हम भी लोग चलते हैं।
कर देंगे लेफ्ट साइड। नहीं अभी कोई मत करो। क्या करे गौरव? कुछ तो बता भाई। सर को मैसेज किया है, रिप्लाई आ रहा है। गौरव औरेला कहाँ गया भाई? हाँ यही हूँ भाई। हाँ भाई देख क्या किया जाए। 2 मिनट रुक जाओ बस, अभी सर का मैसेज आ जाएगा। ओके भाई। नील तेरे हिल स्टेशन की हवा आ रही है। एंजॉय कर एंजॉय। कर रहे हैं। किन वादियों में घूम रहे हो आप? आंधी है ब्रो, आंधी रेत भरी। सर की दूसरी लिंक पर ज्वाइन हो जाओ। सर का मेल आया है ना इनविटेशन का। ओके भाई। भाई मेल नहीं आया भाई। तू शेयर कर दे लिंक। क्या नेट चला गया था बेटा? हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप लेफ्ट हो गए थे। ओके, मैंने भी देखा। कितना टाइम हो गया बेटा? सर 9:54 हो गए सर। 10 नहीं बजने वाले हैं सर। नहीं, लेफ्ट कितने बजे हो गया था मैं? सर सर आप हो गए थे 48-49 पर हो गए थे। 46 सर, 9:46 पे। ओके ओके, पता नहीं चला। तो कहाँ तक पढ़े थे आप लोग, कुछ आइडिया है? ये चल रहा था अपना प्रॉब्लम? सर हेलो। आप स्क्रीन शेयर करो सर, दिख नहीं रहा। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन विजिबल है अभी? यस सर। तो ये सेकंड एग्जांपल चल रहा था अपना। ये यहाँ तक थे या ये कल ही बंद हो गया था? नहीं सर ये चल रहा था सर। चल रहा था ना ये? तो यस सर। कितना, ये वाला एक्सप्लेन कर दिया था मैंने? हाँ सर। तो देखो इसमें हमको मैंने बता दिया कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज कैसे हम अज्यूम करते हैं। तो इनिशियल के लिए मैंने बताया था बी आई डिवाइड बाई एक्स आई आई। तो हमारे पास में ये जो कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, ये हमारे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बन जाएंगे x0 y0 एंड z0 के।
तो x0 हो जाएगा 6/4, y0 हो जाएगा -3/5, z0 हो जाएगा 11/10। तो इनकी वैल्यूज हमारे पास कितनी बन जाएगी 1.5, -0.6 एंड 1.1। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम k = 0 के लिए हम सॉल्व करेंगे पहले इसको। तो राइट हैंड पार्ट में k = 0 पुट करेंगे और सिमिलरली लेफ्ट में भी पुट करेंगे। k = 0 पे z0 की वैल्यू मैंने क्या अज्यूम की है 1.1। तो यहाँ पे आप 1.1 पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x1 की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 0.95। यहाँ पे z0 1.1 पुट करेंगे तो हमको y1 की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज -1.04। अब हम यहाँ पे k = 0 की बात करते हैं, हमारे पास में x1 और y1 पुट करना है। x1 और y1 हमारे पास कौन सी वाली वैल्यूज है, अपडेटेड वाली वैल्यूज हैं। वो कौन सी है 0.95 एंड -1.04। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमको z1 की वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू 1.041। दिस इज अवर फर्स्ट इटरेशन। सिमिलरली k = 1 के लिए आप सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे z1 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे x2 y2 की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में x2 y2 हमारे पास हो जाएगा 0.9795 -1.0164 एंड हमारे पास z2 ये हो जाएगा। ठीक है, k = 2 के लिए आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे z2 x3 y3 की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो हमारे पास में x3 की वैल्यू ये बनेगी, y3 की वैल्यू ये बनेगी और z3 की वैल्यू ये बनेगी। ठीक है, उनको प्रॉब्लम में कहा है कि आपको 3 इटरेशंस आपको सॉल्व करना है। सो आफ्टर 3 इटरेशंस योर सॉल्यूशन विल बी x की वैल्यू हो जाएगी 0.9916, y हो जाएगा -1.0067 एंड z हो जाएगा 1.0069। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द गॉस इटरेशन मेथड। ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करनी है। डू ऑल द इटरेशंस अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल तक आपको इसका आंसर निकालने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? यस सर। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया आप लोगों ने? एंड सिमिलरली थर्ड प्रॉब्लम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। So this is all about the numerical solution of system of equations है। Okay, हमारे पास 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट यूनिट कौन सी थी, न्यूमेरिकल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस f(x = 0). सेकंड थी हमारे पास में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। थर्ड हमारे पास में क्या है, इंटरपोलेशन बाय यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला आपके पास में है और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। तो आपकी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आप ये ट्राई करना है। कुछ डाउट हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, प्रॉब्लम्स ट्राई करनी है। ठीक है, बिकॉज आपका ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आपके, 2 या किसी में 1 होगा, किसी में 2 क्वेश्चन होंगे। आपको ट्राई करना और असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा और 50 मार्क्स है ना, 50 नंबर का होगा आपका असाइनमेंट। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।